مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت اور پرفضل نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والی زندگیوں کو پاسٹر آصف کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گاڈس پیپل، جس پہ آپ خدا کے خوبصورت خادموں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، چند سوالات کرتے ہیں اور وہ ہمیں ان سوالات کے جوابات بتاتے ہیں اور تفصیلاً خدا کے کلام میں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور یقیناً آپ یہ جو پروگرامز کیے جاتے ہیں ان کے وسیلہ سے آپ نہ صرف خود برکت پا رہے ہیں بلکہ آپ جن کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ بھی ان پروگرامز کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کر رہے ہیں۔ سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ریورنڈ جون اقبال صاحب کے دل میں اس بات کو ڈالا اور انہوں نے میڈیا کے ذریعہ سے خدا کے کلام کی منادی شروع کی۔ سو ہم شکر گزار ہیں جون ٹیلی ویژن کے اور جون ٹیلی ویژن ٹیم کے، جن کے وسیلہ سے یہ تمام پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آئے ناظرین، میں آپ کو اپنے آج کے مہمان سے ملواتا ہوں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ سو پاسٹر امجد عنایت صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان ہوتے ہوئے دنیا میں دیکھا جائے تو بہت سارے مذاہب ہیں، تقریباً 4000 سے بھی زیادہ جو مذاہب ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، لیکن ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے، وہ اپنے اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس کی پرستش کرتے ہیں، ہم کس خدا کو مانتے ہیں، ہم کس خدا کے حضور جھکتے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کچھ ایسے ہی سوالات آج ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات چیت کریں گے خدا کے خادم کے ساتھ اور جانیں گے کہ کس طرح سے پادری صاحب آپ نے خدا کو قبول کیا اور یہ رویا کس طرح سے آپ کو ملی، کیا گواہی ہے آپ کی لائف میں؟ ایکچولی میں کیتھولک فیملی سے بلانگ کرتا تھا، تو گناہ میری زندگی میں اس قدر زیادہ تھا کہ ابلیس نے ایسے بندھن میری زندگی میں ڈال رکھے تھے کہ گناہ کی معافی ہے ہی نہیں، نتھنگ، کیونکہ انسان تو انکمپلیٹ ہے، بار بار گناہ کرتا ہے اور ہر بار گرتا ہے۔ لیکن خداوند کے فضل سے اس نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ہم شہر کے مرکز میں گوال منڈی میں رہتے تھے، ادھر کا ماحول بھی ایسا تھا، پھر سخت علاقہ ہے، وہاں زیادہ تر لوگ بت پرستی، نشہ بازی، ناچ رنگ، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے اور الٹریٹ یہ علاقے آکورڈ سے علاقے ہیں۔ لیکن خداوند نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میرے والد صاحب کی نوکری وہاں سے کوئٹ ہوئی، یعنی وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور پھر پوری فیملی جو ہے یہ کوٹ لکھپت بہار کالونی میں شفٹ ہو گئی۔ جب ہم یہاں پر آئے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ابلیس بار بار یہی ڈالتا تھا، ایسے ہی مر جانا ہے، گناہ مٹ نہیں سکتے، یا کوئی خدا ایسا نہیں ہے، یعنی میرے دل میں کوئی ایسا اطمینان نہیں تھا گناہ کے متعلق۔ گناہ ایک بہت بڑی پاور ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور اس سے کبھی ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کبھی ایسا اطمینان، تسلی میرے دل میں نہیں آئی تھی۔ لیکن ایک دفعہ میں ایف جی اے کے چرچ بہار کالونی کے اندر ویسے ہی آ گیا کلام سننے کے لیے، تو گناہ کے بارے میں جو ہے مجھے یہ تعلیم ملی کہ ایک خدا ایسا ہے جسے قبول کرنے سے آپ کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی یسوع مسیح۔
یہوہ خدا۔ تو یہ سایہ کی کتاب کا وہ حوالہ پہلے ہی باب کا، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت ہے، وہ تیرے کرمزی گناہوں کو بھی جو ہے وہ دھو ڈالتا ہے۔ تو میں نے یہ کلام سنا کہ سخت سے سخت گناہ بھی خداوند دھو ڈالتا ہے، اور اس دن میرے اندر ایک ایسا اطمینان آیا جسے میں نے پہلے کبھی فیل نہیں کیا۔ تو چونکہ میں فیملی بیک گراؤنڈ میری کیتھولک تھی، تو اتنا مجھے علم نہیں تھا کہ اطمینان ہوتا کیا، لیکن اس وقت ایک ایسی خدا کے اطمینان کی ایک انٹریکشن میرے اندر آئی جو پہلے کبھی میں نے فیل نہیں کیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تو اس یعنی کہ میسیج نے آپ کو تبدیل کر دیا۔ بالکل، وہ میرا جو ٹرننگ پوائنٹ وہاں سے شروع ہوا۔ تو یہ خدمت کا کام کیسے، جیسے آپ نے بتایا کہ 2008 سے آپ نے خدمت کے کام کو شروع کیا، تو جیسے جیسے میں تعلیم پاتا گیا تو خداوند کی رہنمائی نے مجھے قائل کر لیا کہ دنیا میں بہت سے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا کام جو ہے وہ روحوں کو بچانا، روحوں کی حفاظت کرنا۔ انہیں جس خدا کی میں نے پہچان پائی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح یا اس سے بھی زیادہ جو ہے تاریکی کی حالت میں ہیں، اور یا اس سے کم تاریکی کی حالت میں، ان سب کو خداوند یسوع مسیح کی شدید ضرورت ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین، آپ نے خدا کے خادم سے ان کی گواہی کے بارے میں جانا کہ ان کے لیے خدا کو پہچاننا کتنا ضروری تھا۔ جس طرح داؤد اپنے بیٹے کو کہتا ہے جس وقت وہ بیماری کی حالت میں تھا کہ اے میرے بیٹے میرے خداوند کو پہچان۔ تو آج خدا کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے خادم پاسٹر امجد عنایت صاحب، ان کے چرچ کا نام نیو لائف پینٹیکاسٹل چرچ ہے جو کوپر روڈ پر ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر ایز اے پاسٹر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے سوال کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے اپنے اپنے خدا ہیں، تو ہمیں بھی اپنے خدا کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ یسایہ نبی کی معرفت کلام کیا گیا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ خدا کی پہچان یہ کیا ہے۔ خدا کی پہچان دنیا کے ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر خدا کی پہچان نہ ہو تو انسان گناہ میں دھنستا جاتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی پہچان جن کے پاس نہیں ہے، وہ ان کی زندگی، ان کا طور و اطوار، ان کے رویے وہ گناہ آلودہ ہوں گے۔ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان باتوں کو ظاہر کرے گی کہ ان کی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ گناہ ہے، ان کے آباء و اجداد نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری اور وہ خود بھی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ جس طرح رومیوں کے خط کے اندر ہم اس کی 28ویں آیت، پہلے تو میں 23ویں آیت کی جانب آپ کو لے کر چلوں گا، جہاں پر لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ رومیوں کے پہلے باب کی یہ 23ویں آیت ہے، 24ویں آیت ہے۔ تو خدا کو جاننے کی خواہش جو ہے یہ انسان کو جو ہے خدا کے قریب لے آتی ہے، اور خواہش کے بارے میں لکھا ہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، وہ کچھ نہ کچھ پیدا کرتی ہے۔ خواہش جو ہے یہ بانجھ نہیں ہوتی، خواہش جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈلیور کرتی ہے۔ تو جیسی خواہش ہمارے اندر آئے گی
उसी तरह खुदा हमारे दिलों को देखकर अपनी पहचान के दरवाजे हमारे लिए खोल देगा। और पहचानना खुदा को इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह 28वीं आयत अगर आप देखें तो उसमें लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। और फिर इसके आगे आखिर तक जो है तकरीबन 18 गुनाह की लिस्ट, 18 गुनाहों की लिस्ट है जिसकी बाबत लिखा गया है कि अगर हम खुदा को पहचानना नापसंद करते हैं तो फिर जो है ये तमाम गुनाह हमारी जिंदगी में जो है हमें नजर आएंगे। और इसके ऊपर भी अगर देखें तो 26वीं आयत में बहुत बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र है, लेस्बियनिज्म का जिक्र है, होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है। और खुदा की पहचान जिसके पास नहीं होती वो तारीकी में, गुनाह में जो है धसे हुए हैं, उनकी जो है जनरेशन्स भी है वो अगर खुदा को नहीं जानती तो वो जो है वो खुदा के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं और वो तारीकी में मुब्तला होंगे। और ये इंतहाई जो है ये नागुफ्ता बेहालत है इंसान की, जो लोग खुदा को नहीं जानते। और अगर हम दानियल की सूरी किताब में देखें, उसके आखिरी बाब में लिखा है कि खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। तो जो कुछ करना चाहता है, कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो कुछ दुनिया में करना नहीं चाहता। कौन है जो कुछ नहीं करना चाहता? अगर कोई इंतहाई लेजी पर्सन भी है वो भी चाहता है कि मैं सब कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसके लिए सबसे जबरदस्त और पहला पॉइंट यह है, क्या हम हकीकी खुदा को जानते हैं जिसको जानकर, तकवीयत पाकर, ताकत पाकर हम कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया को जो है अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकते हैं, हम दुनिया की जो है इंटरेक्शन अपनी तरफ ला सकते हैं। अगर हमें दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता तो अगर हम उस खुदा को जान लेते हैं जिसने ये कायनात बनाई, जिसने माजी, हाल और मुस्तकबिल को बनाया, हम उसको जान लेते हैं तो यकीनन हमारे अंदर इस कदर ज़बरदस्त कुदरत होगी कि हम दुनिया में लोगों को जो है अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पायरेशनल पॉइंट है इंसान के लिए। ये बड़ी मोटिवेशन देता है कि हम ऐसे खुदा को जाने जो हकीकी है, जिसको जानने के वसीला से हम कुछ कर दिखाएंगे और खुदा के जलाल को जाहिर करेंगे। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। और खुदा को जानने के लिए हमें वसाइल भी वो उसने खुद मुहैया किए। ज़बरदस्त बात है, उसने अपना इंट्रोडक्शन अधूरा नहीं छोड़ा, उसने उसके पीछे एक सॉलिड काम किया है, हिस्ट्री है उसके काम की, जिसके बेहतरीन वसाइल हमें इस दुनिया के अंदर नजर आते हैं। और सबसे बड़ा वसीला जो है उसके लिए हमारे सामने खुदा का कलाम पड़ा हुआ है, और बाइबल मुकद्दस से बड़ा कोई वसीला नहीं है दुनिया के अंदर जो हकीकी खुदा की पहचान हमें देता है। और 16वीं आयत में पौलुस रसूल हमें साफ और वाज़े तौर पर कहता है कि ये वसीला कितना जबरदस्त है। 16वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, उसकी हेडिंग ही मुझे बड़ी पसंद है। उसकी हेडिंग में लिखा है इंजील की कुदरत। ये ऐसी कुदरत है, वो कहता है क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। सबसे बड़ी कुदरत इंसान की नजात की ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमारे सामने पड़ा है, जो 66 किताबों पर मुश्तमिल है और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला, सबसे ज्यादा तहकीक शुदा, सबसे ज्यादा आजमुदा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस है। इससे बड़ी कोई जो है हमारे पास जरिया नहीं, इससे बड़ा कोई राह नहीं है जिसके बारे में
पैदाइश से मुकाशफा तक बहुत से रसूलों ने, नबियों ने गवाही भी दी। तो बाइबल मुकद्दस एक बड़ा जरिया। और फिर ये करती क्या है, यहां पर आगे वो कहता है इस वास्ते कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। यानी ईमान को बढ़ाने का, उसकी रास्तबाजी को जानने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो खुदा का कलाम, उसकी इंजील, उसकी कुदरत जो है वो खुदा की कुदरत है। तो एक तो ये वसीला है। दूसरा, इसी में से इल्म लेकर अगर हम देखें तो हमें 21वीं आयत में पता चलता है कि सिर्फ बाइबल मुकद्दस को अपनी रूह से पढ़ना नहीं, बल्कि जब खुदा हमारी मदद करता है, और लिखा है इसलिए कि उन्होंने, 21वीं आयत में पढ़ रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। गौर कीजिए, मैं उस पॉइंट पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वर्शिप सिर्फ खुदा को सतही तौर पर जान लेना यह काफी नहीं है। बहुत सी दुनिया जानती है, चर्चेज में जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी से पता चलता है कि एक्चुअली ये खुदा से ना वाकिफ है। उनके रवैयों से पता चलता है। और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है जो हमें मत्ती की इंजील के एक हवाले में मिलती है कि ये आखिर तक ऐसा ही चलता रहेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जब वो लोग मेरे पास आएंगे और मुझे अपनी गवाही देंगे और कहेंगे कि ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से मौजज़े नहीं किए, हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की, और लिखा है बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए, तो यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मैं उस वक्त उनसे यह कह दूंगा कि ऐ मलाउनो, मुझसे दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। तो गौर कीजिए कि खुदा की पहचान, खुदा की वाकफियत होना ये इंतहाई मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से हम खुदा को जानकर तकवीयत पाते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। रूहानी तौर पर भी हम उसको जानकर तकवीयत पा सकते हैं, हम समाजी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, हर एक जिंदगी के पहलू में जब हम खुदा को जान लेते हैं तो हर एक पहलू में वो हमें ताकत और तकवीयत देकर खूब इस्तेमाल करता है और खूब कामयाबी देकर अपने जलाल को जाहिर करता है। तो ऐसे खुदावंद को जानना इंतहाई ज़रूरी है। प्रेज गॉड। नाज़रीन, आपने खुदा के कालम से बड़ा खूबसूरत खुदा की पहचान के बारे में जाना। जब उनकी लाइफ में इत्मीनान नहीं था, तसल्ली नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर मैंने खुदा के इत्मीनान के बारे में जाना और गुनाह के बारे में मेरी पहचान हुई कि मैं किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा था और मेरे लिए खुदा को पहचानना कितना ज़रूरी है। उस वक्त उनकी ज़िंदगी में ये बीज बोया गया। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा के खादम ने खुदा को पहचाना तो खुदा ने ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बदला, बल्कि आज वो बहुत सारी रूहों को जीतने और उनकी ज़िंदगियों को बदलने और गुनाह से उनको और उनकी ज़िंदगी को, ताकि वो अबलीस जो हारा हुआ है, जो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है खुदा के लोगों के खिलाफ, उनसे बचा सके। इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यशायाह नबी कहता है, खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सबके सब बातिल हैं, सबके सब बातिल हैं, यानी कि वो झूठे हैं और उनकी पसंदीदा चीज़ें बेनफा, कोई फ़ायदा नहीं देती। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि पशेमान हो
किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत डाली जिससे कुछ फ़ायदा हो। मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें जो ना कुछ बोलती हैं ना कुछ जवाब देती हैं, लेकिन आज फ़ख्र की बात यह है कि मेरा और आपका खुदा ज़िंदा खुदा है। अपने ज़िंदा खुदा को पहचानिए। पहला तो दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी 16-17 आयत में लिखा है, हर एक सहीफ़ा, यानी कि ये खुदा को पहचानने के लिए ये खुदा का कलाम, हर एक सहीफ़ा यानी कि हर एक सफ़ा जो खुदा के इल्हाम उसके मुंह से निकला हुआ है, हर एक इंसान के लिए तालीम, इल्ज़ाम, रास्तबाजी और तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद है। क्यों? क्योंकि इसलिए ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरती के साथ रोमियो के ख़त में से खुदा की पहचान के बारे में इस चैप्टर में से हमें बताया, और आज मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर हमें खुदा को पहचानने की ज़रूरत है कि हम किसकी प्रस्तिश करते हैं, हम किसकी इबादत करते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह जो है उसकी अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है, क्या हमने खुदा को पहचाना है। तो जो लोग खुदा को पहचान जाते हैं, मैं समझता हूँ वो गुनाह से बरी हो जाते हैं, वो खुद शैतान के उन हथकंडों से बच जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, और खुदा उनकी खुद हिफाजत करता है। सो इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का, लेकिन इससे पहले आए हम दुआ करें, और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। वफादार कुदूस बाप, तेरे बेटे यस्सु मसीह के कादर नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंदा, इस प्रोग्राम के लिए, इस खुदावंद जॉन टीवी जॉन चैनल के लिए तेरे नाम को सदाकत के साथ जलाल देते हैं कि तूने खुदावंदा इन लोगों को तहरीक दी, और खुदावंद इन्हें इन मोटिवेशनल खुदावंदा ज़राए के ज़रिया से खुदावंदा खिदमत करने की तौफीक और फ़ज़ल बख्शा। मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ और तेरे नाम को अपलिफ्ट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंदा बहुत से लोगों को और इनके ज़रिया से खुदावंदा अपनी पहचान बख्श, इनके ज़रिया से खुदावंदा मसीह को जानने की तौफीक दे, और खुदावंदा रूहुल कुद्स पाने की बरकत दे, ताकि खुदावंद ये अपनी खिदमत को बड़ी ही खुदावंद जांफशानी से, सदाकत से, ट्रांसपेरेंटली कर सकें और तेरे जलाल को बखूबी ज़ाहिर कर सकें। और खुदावंद इस प्रोग्राम को भी तेरे हजूर में रखते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंदा जहाँ जहाँ ऑन एयर हो, खुदावंद ये तेरे जलाल को ज़ाहिर करे, ये तेरी बरकतों को खुदावंद आश्कारा करे, बहुत से लोगों को खुदावंद रूहुल कुद्स के ज़रिया से छुए और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, ताकि खुदावंदा हमारी खिदमत जो है ये तेरे जलाल का बाइस ठहरे। ये सारी दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं आज मेरी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, अगर इब्लीस ने आपकी लाइफ को जकड़ रखा है, तो उस खुदा को पहचानिए जिसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, ताकि वो बाप के साथ हमारा मिलाप करा सके। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने खुदा को पहचानें। वो चाहता है इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का हमारे इस प्रोग्राम को आप दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके अजीज़ों का रब भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को रिसीव कर सके। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी।